Priti ma'am, can you hear me? Yes, sir. Please proceed. It's okay. So good morning, everyone. We are on day 3, and for the next 3 hours, we will be having discussions on the topic, as you can see on the screen, designing questionnaires and schedule. Before starting with my session, we'll just have a quick look over our curriculum. You must be having a copy of this particular syllabus with you. So I've been requested to deal with some topics from unit number 3, as you can see on the screen. This is your curriculum. Unit 3, the title of Unit 3 is Data Collection and Analysis. And the first topic in line is primary data. And in primary data, we're supposed to have discussions on designing questionnaires and schedules. And again, I'm going to touch upon another topic, that is a secondary data and the major sources, then journal and all. So these two topics are lined up for today's discussion. So for next 3 hours or so, we'll be having discussions on these two topics, primary data, specifically questionnaire designing part, and then the sources of secondary data. So I just wish to clear one thing at the outset only. The topics which have been assigned to me, incidentally, all these topics belonging to social science, these topics have got slight orientation towards social sciences, commerce, management, and interdisciplinary subjects. So whenever we talk about survey-based research projects, the topics, as you can see on the screen, questionnaire designing part and the scheduling part, all these topics have got more applications in the field of social sciences, commerce, management, and interdisciplinary subjects. So with this brief background regarding our curriculum, so now we are getting into the actual presentation. So hereafter I will try to use a combination of languages, Hindi and English. दो पर्पसेस के साथ यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे. पहला पर्पस ये रहेगा कि मुझे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स मैं आपको ठीक से एलैबोरेटली समझा दूं, सो दैट you should feel comfortable with regard to the understanding of these particular topics. और आपको एग्जाम भी अपियर करनी है और एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है with regard to this particular topics only. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ठीक से समझा दूं ये टॉपिक, सो दैट you should understand the subjects, and at the same time you'll be able to write your exams and crack your exams. So this is the first objective, and second objective in mind is कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा सोशल साइंसेस, कॉमर्स मैनेजमेंट और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की तरफ है. तो आप में से बहुत सारे लोग सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे. तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको समझाऊँ उसकी वजह से आपका खुद का जो रिसर्च स्टडी है, आपका खुद का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसकी क्वालिटी अगर एनहांस कर पाए हम लोग विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूएंसेस ऑफ दिस वीडियो टॉपिक, तो ये मेरी दूसरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दूं आपको. और आप अगर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें और मीनिंगफुली बेटर क्या कर सकते हैं, ये कोशिश रहेगी. सो विद दिस कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वी विल प्रोसीड विद टुडेज प्रेजेंटेशन. 1.5 घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग, लगभग 12 बजे के आसपास, और फिर सेकंड सेशन कंटिन्यू करेंगे. तो आज का जो पूरा 3 घंटे का सेशन जो है उसमें हम लोग ये 4 टॉपिक्स की बात करेंगे. पहला टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है. देन मेजर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, फिर क्वेश्चनर और शेड्यूल, इसमें क्या फर्क है. we'll just try to make a line of difference between these two documents, questionnaire and schedule. And towards the end, we'll be having discussions on the steps in questionnaire designing. So these four topics are on cards for today's discussions. So we are starting our discussions with topic number 1, that is primary versus secondary data. आपको ये सुन के तो मालूम होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, पर जस्ट एक मुझे प्रॉपर मोमेंटम और एक प्रॉपर फ्लो के साथ प्रोसीड करना पसंद है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने शब्दों में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. उससे पहले देखते हैं डेटा की डेफिनेशन. आपको शायद मालूम होगा कि डेटा का इंपॉर्टेंस हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कितना होता है. इनफैक्ट ऑल ओवर रिसर्च स्टडीज रिवॉल्व अराउंड डेटा.
Means this is the importance of data in any research study. So what basically data are? Data are simply facts and figures that we typically generate while conducting our research studies. हम लोग हमारी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते वक्त कुछ फैक्ट्स हो या फिर कुछ रेस्पॉन्सेस हो, ये जब आप जनरेट करते हो और उसको प्रोसेस करते हो, तो दैट पर्टिकुलर facts and figures or the observations or field notes you can say that we generate while conducting our research study, that becomes data. And data is the heart of your research study because entire research study revolves around data. So डेटा जनरेट करने के शायद ब्रॉडली दो तरीके हो सकते हैं. अगर आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चनियर्स एडमिनिस्टर करोगे जिसको हम लोग सर्वे फॉर्म कहते हैं. वो सर्वे फॉर्म्स आप आपके टारगेट पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर करोगे, उनसे आप क्वेश्चन आपके क्वेश्चनियर जो है वो फिलअप करा लोगे. तो जो फील्ड इन फॉर्म्स रहेंगे उसमें जो रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर डेटा. या फिर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, फार्मेसी इस बैकग्राउंड से है और आप अगर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, वो लेबोरेटरी में हो या फील्ड पे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते वक्त या परफॉर्म करते वक्त आप जो रीडिंग्स लेंगे, आप जो रीडिंग्स रिकॉर्ड करोगे, those will be considered as your data. You mean? So one typical peculiarity of data are typically available in a raw form. रॉ का मतलब होता है डेटा आर अनप्रोसेस्ड, डेटा आर अवेलेबल इन अनप्रोसेस्ड फॉर्म. व्हाट डज दिस मीन? अनप्रोसेस्ड का मतलब है कि आप सिंपली जॉटिंग्स ले रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जॉटिंग्स ले रहे हो, रिकॉर्ड ले रहे हो, या फिर आप क्वेश्चन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो वहां से आपके जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टिक मार्क्स एंड ऑल, दैट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज योर डेटा. और ये रॉ फॉर्म में इसलिए है क्योंकि दिस इज अवेलेबल विथ यू for further processing purpose. Because if you are simply going to refer to the data are not exhibiting any kind of patterns as such. You need to process it. You need to edit it, you need to clean it, you need to prepare it for further processing purpose. So one peculiarity about data is data are raw in form. Few examples of data as you can see on the screen. Data may be available in the form of numerical figures. Numbers में generate हो सकता है data. जैसे एक्सपेरिमेंटेशन में आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो तो उसमें आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेटर्स हो या फिर कोई गैजेट्स हो, कोई मशीनरी हो, आप वो यूज कर रहे हो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए, और वो मशीन या फिर आपके गैजेट्स जो उसके रीडिंग्स आएंगे तो वो मोस्टली न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं. तो दैट मे बी रिगार्डेड एज योर डेटा. These may be available in the form of rankings or ratings, you can say. These may be available in the form of tick marks. ABCD आप options दे रहे हो क्वेश्चन फॉर्म में, या फिर ये रेटिंग के फॉर्म में हो सकता है 1 to 10 का रेटिंग एंड ऑल. सो ये कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ये कोट्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में हो सकता है, ये फील्ड नोट्स के फॉर्म में हो सकता है. वॉट एवर जॉटिंग्स यू हैव बीन टेकिंग while observing the things under consideration, even those particular jottings considered as your field notes can be regarded as data. So these are few examples of data. Now we are getting into the another term, that is information. So one line definition of information is processed data. What does this mean? That I told you, data are typically available in raw form, unprocessed form. और हम सब रिसर्च स्कॉलर्स जो है वी आर टिपिकली स्ट्राइविंग हार्ड टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. यानी क्या? एनालिसिस हम लोग जो बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. Statistical analysis is a process. It's a process of transforming your data into information. Information are basically, these are typically available in the form of your findings and interpretations. And findings are more precise. They are more meaningful, but data are not. Data are simply the facts and figures that you have generated. And once your data undergoes some sort of statistical processing or statistical analysis, that transformed data can be considered as information, and information is available in more meaningful sense, and information is useful for the stakeholders और द इंटरेस्ट ग्रुप्स. इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब है कि आपकी रिसर्च स्टडी में जो कोई भी इंटरेस्ट रखता है
उसके लिए इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग्स आर मोर मीनिंगफुल because your decision makers, policy makers, they typically refer to your findings, not data. So data are typically available in raw form, and once you transform it into some meaningful sense, that becomes information. Now we are having a configuration or a classification of data. Data can be classified in several ways. One of the classifications, as you can see on the screen, is on the basis of the nature of data. After considering the nature of your data, you can classify your data into two broad heads, that is primary data and secondary data. Another classification you may have, that is your qualitative data and quantitative data. Then you again have discrete data and your continuous data. So this way you may classify data using several parameters into different classes. But the context under consideration for today's discussions is the nature of data. After taking into consideration the nature of your data, you may classify your data into two types, that is primary data and secondary data. We'll just have a quick glance over the meaning of primary and secondary data. And again, we'll try to have a contrast between primary and secondary data. So we are on to the first type of data, that is called as primary data. So these are the three bullet points which are going to define what is primary data. Primary data is considered as first-hand data. What does this mean? First-hand का मतलब है this data is generated for the first time, which was not in existence, but as a research scholar you have generated it afresh. ये पहली बार जनरेट किया हुआ है. Anyway, ये पहली बार जनरेट किया गया है. That is why this data is original in nature. This data is collected. This data is collected or gathered after taking into consideration your own research needs. आपके पीएचडी को ध्यान में रखते हुए, आपके पीएचडी का टाइटल, आपके पीएचडी के ऑब्जेक्टिव्स और आपके पीएचडी के हाइपोथेसिस, इसको ध्यान में रखते हुए आपके रिसर्च स्टडी के लिए आपने खुद जो जनरेट किया हुआ है, वो डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा. This data is original in form. This data is original because it has been generated for the first time. And importantly, this data is gathered specifically for the research study at hand. आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो डेटा आप खुद जनरेट करते हो, उस डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं. नाउ एज अगेंस्ट दिस द सेकेंडरी डेटा. वन लाइन डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा. मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करूंगा आपको कि पेपर पेन रेडी रखिए और ट्राई टू टेक रनिंग नोट्स. अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होता है. ये पीपीटी आपको मैं दे भी दूंगा तो भी अपने हाथ से लिखा हुआ जो रहता है ना, उसका एक अपना मजा है. तो उसका ग्रास्पिंग जो है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है. तो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक रनिंग नोट्स एज वेल इन द फॉर्म ऑफ, आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पे बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, 2 या 3 लाइंस या एक शब्द ही होता है कभी कभी तो, और मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एंड इफ यू फाइंड इट मीनिंगफुल और यूजफुल, यू मे टेक रनिंग नोट्स. सो विल प्रोसीड नाउ. Secondary data, my definition of secondary data is one line definition. Secondary data is considered as your readily available data. सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा है जो रेडीली अवेलेबल है आपके रेफरेंस के लिए. ये डेटा आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है. ये डेटा किसी और रिसर्च स्कॉलर ने या किसी और रिसर्च एजेंसी ने या कोई इंस्टीट्यूट ने या कोई डिपार्टमेंट ने इसको जनरेट किया हुआ है. और ये डेटा आपकी रिसर्च स्टडी को ध्यान में रखते हुए नहीं गैदर किया गया है. ये किसी और की रिसर्च नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो कलेक्ट करके रखा है. फिर से और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, सेकेंडरी डेटा जो है, इट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग्स. पर प्राइमरी डेटा जो है ये आपका रॉ फॉर्म में होता है अवेलेबल, और सेकेंडरी डेटा प्रोसेस फॉर्म में अवेलेबल होता है. सो सेकेंडरी डेटा आप जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हो आफ्टर विजिटिंग सेवरल वेबसाइट्स हो, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हो या रिपोजिटरीज हो, वहां से जो आप डाउनलोड करते हो,
that data is considered as your secondary data क्योंकि वो आप रेफरेंस के लिए रिट्राइव कर रहे हैं. सेकेंडरी डेटा की 3 पिक्यूलियरिटीज आप कहीं नोट करके रख सकते हैं. सेकेंडरी डेटा को सर्च किया जाता है. 3 पिक्यूलियरिटीज सेकेंडरी डेटा की. सेकेंडरी डेटा को सर्च किया जाता है. सेकेंडरी डेटा को रिट्राइव किया जाता है. और सेकेंडरी डेटा को रेफर किया जाता है. ये 3 पिक्यूलियरिटीज है आपकी सेकेंडरी डेटा की. सेकेंडरी डेटा जनरली गैदर नहीं किया जाता है. सेकेंडरी डेटा सर्च किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, रेफर किया जाता है. सर्च का मतलब है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो या फिर मैन्युअल सर्च भी होता है. आप अगर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, वहां के बुक्स या फिर जर्नल्स से आप कोई डेटा ढूंढ रहे हो तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैनुअल सर्चिंग. और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग, इंटरनेट के थ्रू, रिपोजिटरी के थ्रू या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस जिसको हम लोग कहते हैं उसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं. इसको रिट्राइव का मतलब है जो आपके काम का है उसको डाउनलोड करना. पीडीएफ फाइल में बहुत बार ये अवेलेबल. Excuse me, sir. यस. Sir, I wanted to ask a question actually. यस. Sir, like Yes, I ma'am. am doing research in literature now. So whatever information I am Okay. getting from the either from the net or from library sources and all. So all those is my secondary data. So my primary data, if I am myself analyzing the poem and I am writing something on my own, is that the primary data? Okay, as far as literature research projects are concerned, typically the research scholars belonging to languages, literature, and humanities in general, they generally don't divide data into primary and secondary data. You typically refer to primary source and secondary source. Okay, sir. Primary and secondary source. Okay, sir. Let me explain to you. Primary source and secondary source. This kind of configuration you have, you just don't have data actually. Your studies are typically in the form of compilation or collation, you can say, or you are putting forward your opinion or views, or you are typically critically evaluating whatever literature is in existence. So this is what you typically do while conducting research study on literature, on some existing literature. So again, I am going to differentiate between both this, what is primary source and what is secondary source. Primary source, just a while ago, you were talking about some sort of poem which is being rendered by some established author. Okay. And that particular poem is available in the form of a book, you can say. So this is the original author book, and here that poem has got mentioned. So this is what is called as primary source. Now, one particular research scholar has already referred to this particular poem, and he has already conducted some sort of research studies on this poem. And now he has developed his own script. Getting me? And you are referring to this poem as well, which is original in nature. And at the same time, you are referring to what sort of researches which have been conducted on this original source. So this becomes your secondary source. This become your secondary source. So in literature, you have got a different context, that is primary source and secondary source. But as far as the research scholars who have been generated data, that I already told you, data, these are facts and figures that research scholars generated while conducting their research studies. But what you people are typically doing, typically the literature or languages research scholars, you are simply referring to something which is already in existence. Yes, sir. But this is not the case with social sciences, interdisciplinary research scholars, or even the technology, engineering research scholars, because they have been conducting some sort of experiments, they have been administering some surveys and all. So in that case, they just don't have any kind of such kind of thing. So over there, the context is primary data and secondary data. But for humanities and literature and languages, you have got a context of primary source and secondary source. That's the difference, ma'am. Thank you, sir. Okay, ma'am.
So you may always interrupt me and you can clarify your studies, your queries wherever you feel कि आप मुझे कहीं पे भी जो भी चर्चा चल रही है वहां पे रोक के मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. I will be very happy to resolve your queries. Well, so the context under consideration was primary versus secondary data. Okay, so that I told you, primary data, the data which is being generated by research scholar on his or her own, after taking into consideration his or her own research needs, you can say. And primary data is original in nature, it is first-hand data. So in contrast to that, secondary data is readily available data that research scholars need to search. Research scholars need to retrieve it, that is download it, and research scholars may refer it. Refer का मतलब है आप जैसे आपने रिट्राइव कर लिया पीडीएफ फाइल, ओके, एक रिसर्च आर्टिकल आपको मिल गया, वो है 25 पेजेस का, ओके. अभी ये पीडीएफ फाइल आपको लग रहा है कि ये आपके काम की है एंड you are taking a summary out of it, simply about 200 word summary you are taking from this 25 pages, and you are now citing it. You are citing it in your own research study. This is what is called as referring to. So secondary data may be searched, may be retrieved, and may be referred or cited, you can say. So this is about primary versus secondary data. These are some highlighting bullet points regarding secondary data. I hope I have already explained you. Secondary data is readily available data. This data is collected by someone else. Someone else, maybe a individual research scholar, maybe a university, maybe an organization, maybe institute, an agency, or a department, government department, you can say. And this may be available in the form of a report, you can say. It may be available in the form of a research article. It may be available in the form of a research thesis. Okay, so you are simply referring to it, and then it is compiled for some other purpose कि ये आपकी रिसर्च स्टडी को ध्यान में रखते हुए नहीं कलेक्ट किया गया है और ना ही कंपाइल किया गया है. And importantly, this data is available in the form of findings because it has already undergone some sort of statistical processing or statistical analysis. But this is not the case with primary data. And importantly, this one. Secondary data provides a starting point to your research study. As a research scholar, आप जब पीएचडी प्लान करते हो, कोई भी रिसर्च स्टडी प्लान करते हो, तो सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट. व्हाट डज दिस मीन कि आप जब रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हो तो यू टिपिकली राइट वन चैप्टर डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL या फिर LR हम लोग इसको कहते हैं. तो ये चैप्टर बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए हम लोग प्रीवियस स्टडीज को रेफर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं रहता, और उसको साइट करते हैं. और आपको भी मालूम है कि हमारे रिसर्च स्टडी में जो प्रोसेस है, वी टिपिकली बिगिन आवर जर्नी, रिसर्च जर्नी विथ टॉपिक सिलेक्शन. देन मैं थोड़ा सा यहाँ पे, योर टॉपिक सिलेक्शन followed by title fixation, then followed by your research problem, then research problem, then followed by your research objectives, then research hypothesis, and immediate after that, this is what is called as framework of your research study. Framework of your research studies. Okay, and immediate after that, you talk about selection of research design. और एक बार आपका रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद फिर आप बात करते हो, जैसे रिसर्च डिजाइन में आपने सर्वे की बात करनी है या फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन प्लान कर सकते हो. तो इसमें भी फिर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं, बट दिस इज नॉट अ टॉपिक अंडर कंसिडरेशन फॉर टुडेज डिस्कशन. अभी ये एक बार डिटरमाइन हो गया तो यहाँ से आगे के जो स्टेप्स है वो डिफर होते हैं. सर्वे के लिए स्टेप्स कुछ अलग है, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए स्टेप्स कुछ अलग है. सर्वे के लिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनरी डिजाइनिंग की,
उसके बाद सैम्पलिंग के डिसीजंस आते हैं, और उसके बाद आता है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, उसके बाद आता है आपका एनालिसिस, और उसके बाद आता है फाइंडिंग कंक्लूजन, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, एंड देन रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट आई मीन टू से, ये जो फ्रेमवर्क है हमारा, दीज आर द सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट वी टिपिकली फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। व्हाट आई मीन टू से कि लिटरेचर रिव्यू जो है, इट कम्स हैंडी एट ईच स्टेज। आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो आइडियाज कहाँ से आएगी? यू कैन जनरेट वर्दी आइडियाज बाय रिसोर्टिंग टू लिटरेचर रिव्यू। आपको टाइटल फिक्स करना है, यू मे गेट डाउन अगेन टू लिटरेचर रिव्यू। आपको रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, एंड यू आर क्लूलेस कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं। उसमें 1 पेज लिखना होता है, 4 पेजेस लिखने होते हैं, 1 पैराग्राफ लिखना होता है। इफ यू आर क्लूलेस, देन अगेन गेट डाउन टू दिस लिटरेचर रिव्यू। आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, कैसे सेट करते हैं, कितने सेट करते हैं, ये सब जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है, अगेन लिटरेचर रिव्यू कम्स हैंडी। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स आपको फॉर्मुलेट करने हैं, यू आर क्लूलेस, कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, अगेन लिटरेचर रिव्यू कम्स हैंडी एट दिस स्टेज। रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन, अगेन लिटरेचर रिव्यू। आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है, अगेन लिटरेचर रिव्यू कम्स हैंडी एट दिस स्टेज। What I mean to say, literature review comes handy at each stage, and in fact, literature review provides you starting point to your research journey. और जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा टॉपिक सिलेक्शन, तो वो करने से पहले अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हो, तो आपकी आइडियाज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। सो लिटरेचर रिव्यू टिपिकली प्रोवाइड्स स्टार्टिंग पॉइंट टू योर रिसर्च जर्नी, यू कैन से। अभी बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू यानी क्या। यू नो वेरी वेल, इसमें 2 शब्द हैं, लिटरेचर और रिव्यू। व्हाट इज लिटरेचर? दिस इज व्हाट इज अवेलेबल, means your previous research scholars, whatever they have conducted research studies in your chosen domain, or the topic that you have chosen. So whatever is previously done, okay, what is previously done, and it is available if it is in published form. This is what is called as literature. And what is review? Review is about the 3 things that I told you. It is about search, it is about retrieval, and it is about reference. Okay, so literature review is an activity with the help of which educate ourselves. We educate ourselves कि हमारे मन में जो टॉपिक चल रहा है उसमें प्रीवियसली क्या हुआ है, उसको रेफर करके वी आर ट्राइंग टू गेट सम डीप इंसाइट्स कि हमारी फील्ड में हमारे टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे किस तरीके से रिसर्च किया गया है, और उनके क्या फाइंडिंग्स है, वो किस हद तक एक्सप्लोर हुआ है, what are the topic which have not been explored by the previous research scholars। ये सब जानकारी लेने के लिए शायद लिटरेचर रिव्यू कम्स हैंडी। और दूसरा जो है, दैट इज दूसरा पर्पस, हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू के पर्पस के। दूसरा पर्पस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप्स। व्हाट डज दिस मीन? रिसर्च गैप का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय द प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स। Means what is explored and what is unexplored. What is explored and what is unexplored. तो जब आप unexplored की एक लिस्ट बनाते हो,
कि इस टॉपिक में these are the issues that I have earmarked while conducting a literature survey. These are few things which have not been explored by the previous research scholar. This list of variables which have, or list of variables, or the list of topics in general, you can say, this is what is called as research gaps. And as a research scholar, what you are doing, you are just trying to plug in this particular existing research gaps. यानी टॉपिक सिलेक्शन जो बात है ना, ये जब रिसर्च गैप की लिस्ट बन जाएगी, देन यू गेट वर्दी आइडियाज कि हमने कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए. सो रिसर्च गैप्स कम्स हैंडी ओवर हियर. रिसर्च गैप्स विल गिव यू क्लूज रिगार्डिंग व्हाट टॉपिक्स टू सिलेक्ट. इंटरेस्टिंगली ये रिसर्च गैप्स आपको कैसे पता चलेगी? तो आप रिसर्च आर्टिकल जब पढ़ते हो ना, तो कंक्लूजन के ठीक बाद रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे, कंक्लूजन का जो आखिरी सेक्शन होता है उसके ठीक बाद फ्यूचर रिसर्च एजेंडा नाम से एक छोटा सा सेक्शन होता है. एंड दिस इज नथिंग बट द रिसर्च गैप्स एग्जिस्टिंग इन आवर चोजन फील्ड. You just refer to this particular future research agenda and you just try to plug in this particular existing research gaps. So why we are supposed to do this? Importantly, whenever you are referring to research gaps and if you are trying to plug it, so what you are doing, you are actually contributing in the subject with the help of a very genuine and unexplored research study. Get me? And you are just trying to take your topic a step further. So this is the importance of a literature review, you can say. So the first purpose is educating yourself. You're just trying to get some deep insights about the research topic under consideration कि हमसे मिलते जुलते टॉपिक पे प्रीवियसली रिसर्च किस तरीके से किया गया है. यानी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको पूरा बताई दिया कि ऑब्जेक्टिव्स कितने लिए थे उन्होंने, कौन से ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे किए थे, कितने फॉर्मुलेट किए थे, टेस्ट कौन सी लगाई थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या फॉलो की गई थी. ये सब जो हमारे मन में क्वेश्चंस है वो रिजॉल्व करने का मुझे लगता है लिटरेचर रिव्यू एक बेहतरीन तरीका है. लिटरेचर रिव्यू वर्क्स एज अ मेंटर फॉर यू. It works as a mentor for you, especially when you don't have a real life mentor with you. Getting me? कि आपको गाइड करने वाला अगर कोई नहीं है, तो मुझे लगता है in the absence of a real life mentor, literature review works as a mentor for you, because by conducting a worthy literature review you may resolve many of your queries. मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर सेंस में कि सर लिटरेचर रिव्यू कितने करने चाहिए, जैसे आपके चैप्टर नंबर 2 जो है थीसिस का, चैप्टर नंबर 2 जो है आपके थीसिस का, इट इज डेडिकेटेड टू लिटरेचर रिव्यू. नाउ ये लिटरेचर रिव्यू, ये जो चैप्टर है ये कैसे लिखते हैं, इसके कन्वेंशंस मैंने, मेरा जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लगता है कि रिसर्च स्कॉलर को यहाँ पे इनपुट की जरूरत है कि हाउ टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बिकॉज व्हाट ट्रेडिशनली आई हैव सीन कि रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स देके, यहाँ साइटेशन देके, पैराग्राफ के पैराग्राफ एक के नीचे एक लिस्ट करते हैं. और ये पहला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, इनका आपस में वैसे कोई कनेक्शन दिखता नहीं है. सो लिटरेचर रिव्यू इज नॉट सिंपली रिपोर्टिंग. व्हाट यू आर डूइंग, you are simply reporting, but literature review is not confined only to reporting. You are supposed to derive some meaningful patterns. You need to educate yourself ना. आपको insights तो मिलने चाहिए with the help of literature review कि variables under consideration जो है उसके ऊपर एक summary findings क्या आ रही है. That you should get enlightened after resorting to comprehensive literature review. So मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है, but just because of dearth of time, I'm not getting much into the details of this because I'm supposed to talk on what is primary data and what is secondary data. And if I'm talking about secondary data and if I'm not talking about literature review, then definitely I'm not doing justice to my topic. And I thought कि मैं थोड़ा सा एलेबरेटली इसके ऊपर बात कर लूँ, क्योंकि ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शायद इंटरनेट पे या किसी किताब में नहीं मिलती है. एंड माई फोकस इज मोर ऑन कि जो इंटरनेट या किताबों में नहीं है वो 4 लाइन भी आपको काम की मिल जाती है. तो मुझे लगता है मैं मेरी तरफ से थोड़ा बहुत एक वैल्यू एडिशन करने की सोच रहा था. वेल विल नाउ कंटिन्यू विद आवर डिस्कशंस कि एक जो मुझे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है कि लिटरेचर रिव्यू कितने करने चाहिए, यानी यहाँ पे जो साइटेशंस है वो कितने होने चाहिए.
तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी इवन ये डिफर करता है। पर आप आज की डेट में स्कोपस या फिर डब्ल्यूएस में पब्लिश हुए जो रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च आर्टिकल्स है, उसको रेफर करते हैं, तो वहां पे आपको कम से कम 100 से 125, 100, 125, 150 भी देखे हैं मैंने, एलआर वहां पे दिखते हैं। और हमारा तो कॉम्प्रिहेंसिव, यानी 25 पेजेस के डॉक्यूमेंट में अगर 100 आ रहे हैं, तो यू कैन सी कि हमारे यहाँ एवरेज साइज जो है पीएचडी थीसिस का, ये शायद लगभग 300 पेजेस का है। तो 25 के लिए अगर 100 है, तो 300 के लिए कितने होनी चाहिए? यू कैन फॉर्म योर ओन डिस्क्रिप्शन। तो मुझे लगता है इससे नीचे तो नहीं करना चाहिए आपने, 100, 125 के नीचे रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ओके, सो विल प्रोसीड नाउ। हम लोग ये डिस्कशंस कर रहे थे, और ये एक पॉइंट मैं आपको एलैबोरेट कर रहा था। इट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, रादर it educates you at every stage of your research study. So this is the summary of what we have discussed so far in first section, primary versus secondary data. So this is the summary of our last 30-40 minutes discussion. So we'll just try to summarize it. What is primary data and what is secondary data, and what is the difference between both these data? So as you can see, I have already elaborated all these points, but in summary form, we'll just try to take a quick snapshot. So primary data is first-hand data. It is readily available data. So primary data is collected by the research scholar, and secondary data is collected by someone else. Someone else means a research agency, a individual research scholar, a research institute, or an agency, or a government department, an organization, institute, whosoever is there. So it is not essentially collected by the research scholar. Third one is this data is collected after taking into consideration the requirements of the project at hand. आपकी रिसर्च स्टडी को ध्यान में रखते हुए जो डेटा आपने गैदर किया है, दैट इज प्राइमरी डेटा। और ये जो डेटा है, दिस इज नॉट कलेक्टेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर ओन स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स. This data is available in raw form, and as you can see, secondary data has already undergone some sort of statistical processing. That is why it is called as processed data. Then primary data is collected by administering a questionnaire or by performing some sort of experiments in laboratory or field. And at the same time, your secondary data is collected by carrying out a literature review activity. Okay, so it is to be gathered or collected, but this need to be searched, this need to be retrieved to, and this may be referred to. So this is what we have discussed so far. So we are done with section 1. If you are having any queries with regard to the first section, you may ask me at this particular stage, and then we will get down to section 2. So I'm waiting for your queries for a moment. You may unmute yourself and you may ask me if you wish to clarify your doubts with regard to section number 1. Let me check the chat Sir, box. it is clear, sir. Very well explained, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. We'll get down to the second section now. Sources of secondary data. जिससे मैं बात सेकेंडरी डेटा यानी क्या, जनरली हम लोग जो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लिटरेचर सर्वे जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां पे हम लोगों का पाला जो है वो सेकेंडरी डेटा से होता है। अभी ये सेकेंडरी डेटा कहाँ से गैदर कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर ही रहा था आपको कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है मैन्युअल रिट्राइवल, एक होता है मैन्युअल रिट्राइवल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। both these sources have got their own advantages and disadvantages, but if you refer to the real practice, you will probably see most of the research scholars are in fancy with this board. यानी ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो यहाँ पे जाना चाहते हैं, and the quite obvious reason is कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेस जो है वो ज्यादा मिल जाता है।
वॉल्यूम इंटरनेशनल, नेशनल, इवन लोकल, आपको जो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में आसानी से मिलता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ऑफरिंग यू अ बेनिफिट ऑफ कन्वीनियंस। 24/7 रात को 2 बजे भी आपको करना है कि यार चलो पीएचडी का काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इज क्वाइट इजीली एक्सेसिबल टू यू, यही में। और यहाँ पे बेस जो है, बेस जो डेटा बेस हम लोग कहते हैं, इट इज क्वाइट एक्सपांसिव, बहुत बड़ा ह्यूज डेटा सेट अवेलेबल है, दैट टू एंड एट अ सिंपल माउस क्लिक यू कैन से। मैनुअल जो है, यहाँ पे आपको फिजिकली लाइब्रेरी को या किसी ऑफिसेस में या इंस्टीट्यूशन में आपको विजिट करके वहां पे परमिशंस लेके आपको ये रिट्राइव करना होता है। तो मैन्युअली भी करते हैं लोग, और आज की डेट में कोविड हो या नहीं हो, और मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक ये एक बेहतरीन जरिया है आज की डेट में। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि हम सब लोग ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्च जिसको कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त सर्च स्ट्रेटेजी एक कंसेप्ट है। खास करके आप एसएलआर, आपने अगर सुना होगा, एसएलआर या फिर मेटा या फिर बिब्लियोमेट्रिक। मैं थोड़ा सा 2 लाइन इसके ऊपर बात कर लेता हूं। देखिए, लिटरेचर रिव्यू जो है ना, ये 5 से 6 प्रकार का होता है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स में बता रहा हूँ आपको। पहला जो होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नरेटिव। दूसरा होता है सिस्टमैटिक। तीसरा होता है बिब्लियोमेट्रिक। चौथा होता है मेटा। पांचवा होता है कंसेप्चुअल। थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं। पहला जो पार्ट है, इसको कहते हैं नरेटिव एलआर। नरेटिव एलआर हम लोग पीएचडी का चैप्टर 2 जो डेवलप करते हैं, उस लिटरेचर रिव्यू को नरेटिव कहते हैं। अभी नरेटिव में क्या होता है कि बेसिकली यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस टू कंडक्ट योर एलआर। आपके पास रिसर्च टॉपिक है, उससे मिलते जुलते आपको जितने भी टॉपिक के रिसर्च मिलेंगे, उसका आप एक समरी बनाते हो और उसको प्रेजेंट करते हो। इट इज सिंपली इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट यू हैव फाउंड। It is simply a reporting activity, you can say. Whatever existing literature on the topic under consideration that you could find, that you are simply reporting in the form of a summary. That is what is called as narrative. Means a narrative literature review is typically conducted for PhD thesis. Okay. Second type, it is called as systematic LR, और इसका लॉन्ग फॉर्म है SLR, systematic literature review. And SLR you conduct to write a article है ना, research paper। आपको अगर स्कोपस या फिर WOS या फिर आपकी यूजीसी केयर लिस्ट हो या फिर ABDC की लिस्ट आपको शायद मालूम होगी, जो दुनिया की बेहतरीन जर्नल्स है उसमें ABDC लिस्ट। यहाँ पे अगर आपको पेपर पब्लिश करना है, तो फिर ये एक ऐसा जरिया है कि जहाँ से ये फॉलो करके आप वहां पे एक शॉर्टकट मान सकते हो आप। सो जैसे इसका नाम बता रहा है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पे ना स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस को हम लोग लिटरेचर रिव्यू के थ्रू एड्रेस करते हैं। यहाँ पे फोकस होता है सर्च स्ट्रेटेजी जो मैं बात कर रहा था, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन इंक्लूसिव बोल सकते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया। अभी ये क्या है, ये बताने के लिए मेरा
फ्लेजेड 5 दिन का प्रोग्राम होता है एसएलआर और मेटा पे। पर फॉर द टाइम बिंग मैं जस्ट आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को अवगत करा देता हूँ। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया यूज करके हम लोगों को लिटरेचर सर्च करके इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया यूज करके हम लोगों को एक समरी हम लोग बना सकते हैं, एंड वी कैन पब्लिश आर्टिकल ऑन दिस समरी, and these types of article are called as SLR articles, and it has got a very good publication value. Scopus में वगैरह इस प्रकार के पेपर आसानी से पब्लिश हो जाते हैं because SLR has got its own importance। कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स के मुझे कॉल भी आते हैं और वो कहते हैं कि सर रिसर्च पेपर डेवलप करना है यूजीसी केयर लिस्ट के लिए या फिर स्कोपस के लिए, और सर्वे करने के लिए टाइम नहीं है सर, घर में बैठ के क्या कर सकते हैं। तो आई टिपिकली रिकमेंड कि ये जो प्रकार है इट इज कॉल्ड एज डेस्क रिसर्च। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, आपका खुद का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। और ये इतना तगड़ा रिसर्च होता है कि ये पब्लिश हो जाता है। इवन ए कैटेगरी जर्नल जो मैं एबीडीसी लिस्ट बोल रहा था ना, एबीडीसी जिनको अगर नहीं मालूम होगा, मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है ये, पर फिर भी कोई एक आध हो सकता है नया, उसके लिए बता रहा हूँ। एबीडीसी लिस्ट होती है, आप गूगल की सर्च विंडो में जाके एबीडीसी जर्नल लिस्ट ऐसा अगर टाइप करेंगे तो आपको ये लिस्ट की एक्सेल फाइल मिल जाएगी। मैं एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा देता हूँ अभी। एबीडीसी जर्नल लिस्ट, इसमें 4 कैटेगरीज के जर्नल होते हैं। ए स्टार, ये कुछ 960 है इसमें जर्नल्स, बाद में ए, बी और सी, ये 4 कैटेगरीज है। एंड इट शुड बी योर ड्रीम टू गेट योर पेपर पब्लिश्ड ओवर हियर। ये ए, बी, ए स्टार, ए, बी और सी, ये 4 कैटेगरी के जर्नल है। ये 4 में से भी कहीं पे तो भी एक जगह पे आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तो आपका प्रोफाइल जो है वो रीच हो जाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ जाने का एक शॉर्टकट मुझे लगता है एसएलआर है। ओके, पर ये थोड़ा सा सीखने वाली प्रोसेस है। वेल, उसके बाद बिब्लियोमेट्रिक एलआर। बिब्लियोमेट्रिक लिटरेचर रिव्यू। बिब्लियोमेट्रिक जो है ये एसएलआर जैसा ही काम करता है। एसएलआर के एक्चुअली बाद बिब्लियोमेट्रिक करना होता है। ओके, एसएलआर का एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक, पर बिब्लियोमेट्रिक जो है इट इज यू आर रिपोर्टिंग लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। इसके वर्ड क्लाउड्स, वर्ड ट्रीज, इसके लिए ना सॉफ्टवेयर आते हैं कुछ बिब्लियोमेट्रिक के लिए, जिससे एक जो मुझे मालूम है अभी, वॉइस व्यूअर नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और वो यूज करके हम लोग बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू, जिसको वर्ड क्लाउड या फिर वर्ड ट्रीज और बाकी भी बहुत ही फैंसी ग्राफ्स बनते हैं। व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू? इसमें आप ये बता रहे हो कि आपके टॉपिक से मिलते जुलते बेस्ट ऑथर्स कौन है, यानी सबसे बड़े की कंट्रीब्यूटर्स कौन है, कि आपके टॉपिक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से ऑथर्स का रहा है दुनिया में। बाद में बेस्ट जर्नल्स कौन से है, मोस्ट साइटेड पेपर्स कौन से है, ये सब जो चीजें हैं ये बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू में हम लोग डायग्राम के फॉर्म में या फिर पिक्चर्स के फॉर्म में सॉफ्टवेयर यूज करके रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद आता है फिर मेटा, यानी एसएलआर के बाद आप एक तो बिब्लियोमेट्रिक कर सकते हो या फिर एसएलआर के बाद आप मेटा कर सकते हो। मेटा एनालिसिस इसको कहते हैं, और मेटा एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। इसके लिए एक 4-5 सॉफ्टवेयर आते हैं। आर से आप कर सकते हो, या फिर जैमोवी एक सॉफ्टवेयर है, या फिर मेटा इसेंशियल है, या फिर सीएमए। ये 4 सॉफ्टवेयर यूज करके आप मेटा एनालिसिस कर सकते हो। और ये वाले जो पेपर है ये यहाँ पे आराम से चले जाते हैं ए और ए स्टार कैटेगरी में। इवन मेरा भी खुद का काम चल रहा है 3 पेपर्स पे, मैं मेटा पे ही काम कर रहा हूँ, एसएलआर, मेटा और बिब्लियोमेट्रिक, इस पे ही मैं काम कर रहा हूँ। और हम लोग जा रहे हैं अभी ए के लिए, मैं पब्लिश कर रहा हूँ। सो पार्ट अपार्ट उसके बाद आता है कंसेप्चुअल रिव्यू, पर ये हम जैसे इंडिविजुअल रिसर्चर जनरली फोकस नहीं करते हैं और रियल लाइफ में ये बहुत कम देखा जाता है। कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना कंसेप्चुअली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसेप्चुअल रिव्यू। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जाता है हमारे जैसे इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर के लिए। सो वी कैन फोकस मोर ऑन दिस 4। सो दीज आर, ये तो करना ही है कंपल्सरीली अगर आप पीएचडी कर रहे हैं। पर रिसर्च आर्टिकल्स लिखने के लिए मुझे लगता है कि आपका रिसर्च स्टडी, इफ सपोज आपने अभी न्यूली एनरोल किया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए और आपका डेटा कलेक्शन हुआ ही नहीं है, 5 साल का समय और आपके 1 साल हो गया है, और आपको लग रहा है कि चलो यार पेपर पब्लिश कर देते हैं अपनी टॉपिक पे, और आपका डेटा जनरेशन होने का ही है, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू, यू कैन डेवलप पेपर्स ऑन दिस सिस्टमैटिक एलआर या फिर बिब्लियोमेट्रिक और मेटा। यू मस्ट गो फॉर दिस।
और इंडिया में ये बहुत कम काम हुआ है, तो इसको पब्लिकेशन वैल्यू ज्यादा है, आसानी से ये अच्छी क्वालिटी के जर्नल में पब्लिश हो जाते हैं। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट योर टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अभी बात करते हैं सोर्सेस। ये सब कंडक्ट करने के लिए, ये सब नरेटिव हो या सिस्टमैटिक हो या बिब्लियोमेट्रिक हो, इसके लिए इनपुट चाहिए ना आपको। इनपुट यानी क्या, स्टडीज को लेके एक समरी चार्ट बनता है। स्टडीज को जितना भी आपने, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि कम से कम 125-150 तो करो यार लिटरेचर रिव्यू, अभी वो 125-150 का हम लोग एक समरी चार्ट बनाते हैं। वो चार्ट इनपुट करके काम करता है ये सब के लिए, नरेटिव के लिए हो या फिर एसएलआर के लिए हो या फिर बिब्लियोमेट्रिक के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था एसएलआर हो या बिब्लियोमेट्रिक हो, इसके लिए मास्टर चार्ट बनाने के बाद ही तो उसका फीडिंग हम लोग सॉफ्टवेयर में करते हैं और उससे फिर चार्ट जो है वो जनरेट होके आते हैं, वर्ड क्लाउड वगैरह जो मैं बता रहा था आपको। सो हम लोगों को समरी चार्ट बनाना था। ये समरी चार्ट बनाने से पहले हम लोगों को लिटरेचर सर्च करना होता है अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि इन सब की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है, हम लोग इतना ध्यान से करते नहीं है। मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि अपने एरिया के, जैसे विदर्भ में मैं ट्रेनर करके जाना जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा है कि लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी को रिसर्च स्कॉलर बहुत लाइटली लेते हैं। अरे उसको क्या है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। दिस इज हाउ रिसर्च स्कॉलर्स लुक एट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट दिस इज नॉट सो। आप एलआर अच्छे से तबीयत से पहला एक साल एलआर ही करिए ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाती है, आपके बात करने का ढंग ही बदल जाता है। लिटरेचर जैसे एलआर इज सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बॉस, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक मेंटर के तरीके से काम करता है। आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं ना, जो शायद इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे या बुक में नहीं मिलेंगे, वो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो रियल लाइफ में काम करते वक्त आते हैं, और वो किसी को हक से पूछने के लिए वो लोग भी नहीं है हमारे पास, इफ सपोज। तो मुझे लगता है एलआर इज योर मेंटर इन द एब्सेंस ऑफ ए रियल लाइफ मेंटर। सो टेक दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी सीरियसली, और वो मीनिंगफुली कैसे कर सकते हैं इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। उससे पहले हमारा टॉपिक अंडर कंसिडरेशन याद दिला रहा हूं मैं, वो है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, और मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस की। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस में जैसे आपको मालूम है कि हम लोग जनरली गूगल स्कॉलर, ये आपको शायद मालूम होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सर्चिंग की फैसिलिटी हम लोगों को देता है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को मैंने देखा है कि प्लेन गूगल पे सर्च करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। प्लेन गूगल पे आप सर्च करोगे तो वो अच्छी क्वालिटी के आपको जर्नल्स नहीं मिलेंगे, और जर्नल मिलेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं, वहां पे तो कुछ भी आ जाता है, वेब पेजेस भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी आ जाते हैं सिंपल से, या न्यूज लेटर्स भी आ जाते हैं, जो हम लोग जनरली साइट नहीं करना चाहते। हमको तो रिसर्च आर्टिकल्स अच्छी क्वालिटी के अगर साइट करने हैं, तो फिर आपने प्लेन गूगल ना करते हुए गूगल स्कॉलर करना चाहिए। और ये गूगल स्कॉलर कैसे करते हैं उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गूगल स्कॉलर की, और वहां से एक छोटा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि हाउ टू सर्च लिटरेचर थ्रू गूगल स्कॉलर। हम लोग फिर से, मैं आपको याद दिला देता हूँ, डिस्कस क्या कर रहे हैं, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस में एक सोर्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ एट द मोमेंट, वो है गूगल स्कॉलर। और इसके बाद और कुछ सोर्सेस मैं आपको दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सर्चेस के, पर उससे पहले गूगल स्कॉलर मुझे लगता है जिनको मालूम है 100 में से 100 रिसर्च स्कॉलर्स ये यूज कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये गूगल स्कॉलर और मीनिंगफुली कैसे सर्च कर सकते हैं उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, और फिर बाकी सोर्सेस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गूगल का, अलाउ मी अ मोमेंट। So kindly confirm, can you see my Google Scholar window now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ अभी, और आप कोई भी डिसिप्लिन के क्यों ना हो, अभी डिसिप्लिन मैटर नहीं करता, ये हम सबको करना ही होता है। तो गूगल स्कॉलर सर्च करते वक्त मीनिंगफुली कैसे सर्च कर सकते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। आपको लगता है
तो आप ये नोट्स भी रनिंग नोट्स ले सकते हैं स्टेप्स के फॉर्म में। जैसे अभी मैं होम पेज पे हूँ गूगल स्कॉलर के, और यहाँ से हम लोगों को कुछ वर्दी आर्टिकल्स ढूंढने हैं जो हम लोग साइट कर सके और हमारे लिटरेचर रिव्यू की क्वालिटी बेहतरीन हो, और हम अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स को ही रेफर करेंगे ना, क्योंकि जो बेटर है क्वालिटी जर्नल हो या क्वालिटी आर्टिकल्स उनको रेफर करते हो तो आपके खुद के रिसर्च की क्वालिटी भी एनहांस हो जाती है। ये तो कॉमन लॉजिक है। तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे और मीनिंगफुली गूगल स्कॉलर कैसे सर्च करेंगे, उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी दे रहा हूँ। जैसे मुझे इफ सपोज मेरा अभी जो काम चल रहा है उसका एक मैं मेरे दिमाग में अभी ताजा ताजा है तो वही एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ सपोज मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ और इसको लेके मुझे गूगल स्कॉलर में रिसर्च पेपर्स ढूंढने हैं, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कीवर्ड मैंने डाल दिए और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ। गेटिंग मी? इस तरीके से जनरली हम लोग करते हैं। अभी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को लेके आप देखेंगे कि 10,90,000 रिजल्ट्स आए हैं। गेटिंग मी? अभी इतने सारे 10,90,000 को मैं कैसे रेफर करूं? आई शुड रिड्यूस डाउन दिस नंबर। और अभी गूगल स्कॉलर को जैसे मैंने ये कमांड दिया है तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द कीवर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर, एंड दिस इज एक्चुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रेज। एंड यू नो वेरी वेल कि फ्रेज इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, सेवरल वर्ड्स, 1, 2, 3 और 4 वर्ड का एक फ्रेज बना है, एंड दिस फ्रेज आई एम सर्चिंग। अभी गूगल स्कॉलर को जब हम इस तरीके से कमांड देते हैं सर्च की, तो उस वक्त गूगल स्कॉलर क्या करेगा, जहां जहां उसको थ्योरी वर्ड दिखेगा वो लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा, जहां पे उसको ऑफ दिखेगा वो भी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जहां जहां प्लांट ये वर्ड दिखेगा वो आपको दे देगा, और बिहेवियर ये वर्ड जहां जहां उसके डेटाबेस में उसको दिखेगा वो वर्ड वो ले लेगा। यानी मैं बिहेवियर का स्पेलिंग भी थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं और फिर से एक सर्च करते हैं। एज यू कैन सी अभी तो ये डबल हो गया, लगभग 20,40,000। अभी अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, गूगल जो है ये चारों वर्ड्स को सेपरेटली ढूंढ रहा है, और हमको वैसा नहीं चाहिए। हम लोगों को ये फ्रेज ही चाहिए, जहां जहां वो देगा हमको रिजल्ट्स वहां पे हम लोगों को ये फ्रेज दिखनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका जो फ्रेज है उसको आप शुरू में डबल कोट लगा देंगे और आखिर में डबल कोट लगा देंगे, एंड नाउ यू स्टार्ट सर्चिंग अफ्रेश। मैंने सर्च की बटन दबा दी, आप देख रहे हो कि 20 लाख से मैं सीधा रिड्यूस हुआ हूं 1,90,000 पे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर बुलियन सर्च। बुलियन सर्च। अभी मैं सिर्फ इतना एक ही वर्ड तो ढूंढ नहीं रहा हूं, अभी जहां जहां थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर यूज की गई है, ये थ्योरी जो जो रिसर्च आर्टिकल में यूज की गई है वो मुझे यहाँ पे इसने दे दिया, और वो बोल रहा है कि मेरे पास 1,90,000 है। हो सकता है कि थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर इफ सपोज मेडिसिन में यूज की है, पर मैं तो बिजनेस मैनेजमेंट वाला हूँ, मुझे वो मेडिसिन वाले नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल एजुकेशन वाले भी नहीं चाहिए, मुझे तो बिजनेस मैनेजमेंट वाले चाहिए। तो मैं इसको और फाइन ट्यून कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट देना होगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं कमांड दे रहा हूँ, इसको कहते हैं एंड कमांड, और ये टाइप करते हुए आप कैपिटल में ही टाइप करेंगे। ये बुलियन कमांड्स कहते हैं इसको, एंड और नॉट, और कुछ वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो मैं थोड़ी देर बाद समझा ही रहा हूँ आपको एक एक करके। तो अभी जो मैंने एंड कमांड दी है इसको बुलियन कमांड कहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे ऐसे पेपर्स हो जो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं। मेरा बेसिक सेक्टर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है ऑनलाइन शॉपिंग, और ऑनलाइन शॉपिंग ये सेक्टर में थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर जहां जहां यूज की गई है, मैं चाहता हूं कि गूगल स्कॉलर मुझे सिर्फ उतने ही पेपर्स दे। तो ये एंड बुलियन कमांड लगाने के बाद मैंने फिर से दूसरा जो फ्रेज है मेरा उसको भी मैंने डबल कोट में डाल दिया। अभी मैं इसको ढूंढ रहा हूं, आप देख सकते हो 1,09,000 से हम लोग रिड्यूस हुए हैं 12,600 पे। में इसके आगे और कुछ आपको लगाना है। इफ सपोज मुझे यहाँ पे और इसके साथ एक रेफरेंस चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए। इफ सपोज मुझे चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग यूथ को लेके ही हो, मैंने फिर से फाइन ट्यून कर दिया। अभी मैं फिर से इसको ढूंढ रहा हूं।
आप देख रहे हैं, मैं जो चाहता हूं वो रिड्यूस हो रहा है 1600। मैं यूथ की जगह मुझे लगता है कि ऐसे भी पेपर्स मिल जाए जो स्टूडेंट्स की बात भी करे। स्टूडेंट और यूथ शायद सिनोनिमस जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं यूथ का भी कर रहा हूं और उसमें स्टूडेंट रहे तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे मुझे यूथ और चाहिए। अभी मैं यहाँ पे कमांड लगा रहा हूं और, इसको बुलियन कमांड कहते हैं। और क्या करेगा कि सिनोनिमस वर्ड्स को भी वो दे देगा। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट के साथ यूथ, यूथ के साथ स्टूडेंट भी दे दें। मैं फिर से सर्च कर रहा हूं इसको। आप देख रहे हैं मेरे रिजल्ट्स थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि जहां जहां यूथ है और जहां जहां स्टूडेंट है, ये दोनों उसने मुझे दे दिए हैं। ये और लगाने के बाद आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, और एंड लगाने के बाद और फाइन सर्चिंग होता है। यानी में अभी मेरे पास 5680 आर्टिकल्स आ गए हैं गूगल स्कॉलर के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में। अभी मैं चाहता हूं कि मैं इसको फिर से फाइन ट्यून करूं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ पिछले 10 सालों के ही रिजल्ट्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम वाला रेफरेंस, इसको रिफाइन सर्च कहते हैं। यहाँ पे मैं मेरी रेंज जो है वो कस्टमाइज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं इसको कि 2011 से 2021, बस इतने ही 10 साल के मुझे पेपर्स चाहिए। आप देख सकते हैं मुझे फाइन ट्यून होके मिले हैं। इवन आप रेलिवेंस को लेके भी सर्चिंग कर सकते हो एंड ऑल। सो दिस वे यू कैन सर्च गूगल स्कॉलर। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट सर्चिंग। ओके, इसको लेके अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट्स नहीं होंगे तो फिर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पे जाता हूँ। Excuse me, sir. Hello, sir. Hello. Regarding the time, I was not clear. How to find out? ओके Because after ओके, टाइम पीरियड Hello. को लेके कुछ शंका है? हाँ जी, हाँ सर। हेलो, आपने जो अभी हाँ, वर्ड सर। 2010 और 2020 तक है, 21 तक, ये जो टाइप जो हाँ। आपने कहा टाइप किया, ये हाँ समझ सर। नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। आप ये लेफ्ट विंडो देखिए सर, यहाँ पे आप ये दिख रहा है एनी टाइम, ये आर्टिकल्स दिख रहा है गूगल स्कॉलर, उसके ठीक नीचे आर्टिकल, एकदम नीचे में सर, एकदम नीचे में। यहाँ पे कस्टम रेंज जो है ना, कस्टम रेंज में यहाँ पे आप टाइम पीरियड डालिए। इफ सपोज मुझे पिछले 5 साल के लिए चाहिए, तो ये 2015 कर रहा हूं मैं, और 2015 से 2020 के बीच में इफ सपोज, और यहाँ पे सर्च की बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए आप। सर एकदम नीचे में क्या? यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है सर, यहाँ। जी जी, ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मैडम बोलिए। Sir, in case of research article and review article, can हाँ। we separate them according to this scheme? Google Scholar doesn't offer this facility, but other electronic databases they offer this facility, and now I am getting into other databases. तो मैं वहां पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि हाउ यू कैन फिल्टर रिसर्च आर्टिकल्स एंड योर रिव्यू आर्टिकल्स। पर गूगल स्कॉलर में इंसिडेंटली ये फैसिलिटी नहीं है। Okay, sir. Okay, thank you. दूसरे डेटाबेस में है, मैं अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। पर उससे पहले अगर गूगल स्कॉलर को लेके किसी और रिसर्च स्कॉलर्स को क्वेश्चंस होंगे तो पहले मैं वो डील कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट डेटाबेस में जाता हूँ मैं। Excuse me, sir. हाँ मैडम। Sir, am I audible? Yes ma'am, I can hear you. Sir, I wanted to know if only one or two concepts you want to on your research title or whichever paper you are planning to write. Is that allowed in the research review if your whole incorporated only one or two concepts you are taking from suppose some other paper and incorporating that in the literature review? Is that allowed? Is that even in the thesis? Is it okay? ओके, मैं एड्रेस कर देता हूँ ये इशू को। ये एक्चुअली ना कंडक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू उसमें जाता है ये पार्ट, पर आपने पूछा है तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। पर अदरवाइज ये पूरा Yes, sir. मेरा
3 घंटे का सेशन होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं ये पूरा डील करता हूँ। पर इंसिडेंटली हमारा जो करिकुलम है अभी प्री पीएचडी कोर्सों का, उसका आप जो पूछते हो उसका मेंशन यहाँ पे है नहीं, पर आपने पूछा है तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। उससे Right, पहले ना किसी रिसर्च स्कॉलर को गूगल स्कॉलर सर्चिंग को लेके कुछ डाउट होंगे तो क्लैरिफाई कर लीजिए। नेहा मैम का जो सवाल है उसको उसका जवाब देने के लिए मुझे फिर से आई नीड टू गेट बैक टू माय पीपीटी, और वहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम निकाल के बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। और गूगल स्कॉलर Right, sir. की विंडो अभी मेरी ओपन है, इसको लेके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लीजिए, फिर मैं वो सेकंड सेक्शन में जाता हूँ नेहा मैम के। तो ये एंड और कमांड शायद आपको समझ में आ गए होंगे, तो ट्राई टू यूज दिस कमांड। मुझे लगता है बिल्कुल, तो मुझे लगता है आपको अगर इसको लेके कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैं नेहा मैम के सवाल का जवाब दे देता हूँ। So can you see my PowerPoint slides now? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेहा मैम का ओरिजिनल सवाल कुछ ऐसा है कि आप ना जब लिटरेचर सर्वे करते हो तो उस वक्त वो कैसे करना है। जैसे अभी कीवर्ड्स तो मैंने ये तो ऑलरेडी काम करके रखा है ना मेरे कीवर्ड्स पे, इसलिए मैं आसानी से वहां पे फीड कर पा रहा हूँ। पर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को ये सर्च करते वक्त मैंने देखा है कि एक अनट्रेंड रिसर्च स्कॉलर क्या करता है, अपने पीएचडी का टाइटल जो है वो गूगल स्कॉलर की सर्च विंडो में कॉपी पेस्ट करता है, जैसे कि वैसा। ओके, वो वैसा नहीं मिलेगा कभी आपको, वैसे जैसे कि वैसा टॉपिक आपको लिटरेचर में कैसे मिलेगा। Right, sir. आपको ना आपके रिसर्च टाइटल के टुकड़े करने होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन। जब तक ये ग्राउंड वर्क नहीं होगा आपकी लिटरेचर सर्च की एक्टिविटी मीनिंगफुल नहीं कहलाएगी। अभी आपके टाइटल के टुकड़े करने यानी क्या, आपके टाइटल में से आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के तरीके में बता रहा हूं आपको। पहला तरीका शायद ये हो सकता है कि जो थ्योरी हो या फिर जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी हो या फिर थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो आपका कीवर्ड हो सकता है। जैसे मैंने अभी बात किया था थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, मींस माय एंटायर Yes. रिसर्च स्टडी इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, सो दैट बिकम्स माय फर्स्ट कीवर्ड। यानी में along with Yes, sir. that you may identify a particular sector that you wish to deal in। कि जैसे मैंने अभी बात किया था ऑनलाइन डिटेलिंग, आप बात कर Right, sir. सकते हो ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऑर्गेनिक फूड, हॉस्पिटैलिटी। You need to identify the sector as well. That becomes your second keyword. Then आपने अभी मैंने जो सर्च किया उसमें स्मार्टली देखा होगा मैंने तीसरा क्या डाला था, यूथ, यानी इट इज Youth. कॉल्ड एज द पॉपुलेशन। इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। Hmm. कॉल्ड एज पॉपुलेशन, कि आप टारगेट पॉपुलेशन क्या है आपका, यूथ है, हाउसवाइफ्स है, वुमेन है, फार्मर्स है, बैंकर्स है। दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। दिस इज योर थर्ड कीवर्ड। एंड द फोर्थ वन दैट यू कैन यूज, मुझे अभी एक मैम ने क्वेश्चन भी पूछा था कि गूगल स्कॉलर में वो फैसिलिटी इनहेरेंटली नहीं है। यहाँ पे आप बात कर सकते हो मेथड की, कि आप जैसे मैडम ने अभी मुझे पूछा था कि सर रिसर्च आर्टिकल्स और रिव्यू आर्टिकल्स ऐसे सेपरेटली मिल सकते हैं क्या, तो आपको उसका और एक कीवर्ड एंड फॉर्म में लगाना होगा। वो जो कीवर्ड सर्चिंग कर रहे हो ना आप, और एक एंड लगा के आपको हाइफन में सिर्फ आपको सपोज एसएलआर चाहिए तो आपको एक वर्ड देना होगा, सिस्टमैटिक लिटरेचर Systematic रिव्यू। literature review. Right, sir. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यानी ये पूरा लिखेंगे आप, जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम एंड स्पेस मैं शॉर्ट फॉर्म Right, लिख रहा sir. हूँ। Right. पर आपको अगर चाहिए कि सिर्फ मेटा के पेपर्स चाहिए, आपको सिर्फ मेटा एनालिसिस के पेपर्स चाहिए, तो अगेन you mention it in a double quote. So this way you can search Google. Okay, sir. और इसी Yes, को sir. लेके इनपुट दे देता हूँ। अभी लिटरेचर रिव्यू लिखते कैसे, अभी ये बात चल ही रही तो एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि एलआर लिखते कैसे थे इसमें। अभी जो बात हो रही थी कि आपका जो रिसर्च टाइटल है, आपका जो रिसर्च टाइटल है ये एक
कॉम्प्रहेंसिव टर्म ही होनी चाहिए। और ये बात आती है आपके टॉपिक सिलेक्शन। आपका टॉपिक सिलेक्शन अगर सही है तो फिर अभी जो मैं इनपुट बता रहा हूं ये शायद आपके काम के हैं। पर गलतियां जो Right, है sir. ना, जो असली डैमेज जो है ना, वो अर्ली स्टेजेस में हो गया होता है। यानी क्या, आप अगर ट्रेनिंग लिए बिना पीएचडी कर रहे हो तो आपका पहले पीएचडी में आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इतना सीख रहे हो कि पीएचडी करते कैसे हैं। Right, sir. आपके पहले पीएचडी में अगर आप बिना ट्रेनिंग के आपने एनरोल कर लिया है तो इवन अवार्ड होने के बाद भी सिर्फ इतना ही पता चलता है कि पीएचडी करने की प्रोसेस क्या है। उसमें आपने रिसर्च क्या किया हुआ है वही एक खुद रिसर्च का मुद्दा हो जाता है। इसलिए ना रिसर्च आपकी पीएचडी के लिए एनरोल करने से पहले आपने कॉन्क्रीट ट्रेनिंग, कॉम्प्रहेंसिव, कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग, और ये 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपने कम से कम 4 अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स, आपके दिमाग में जो टॉपिक चल रहा है ना उसको लेके आप आरएम, रिसर्च मेथोलॉजी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कम से कम ये 2 एरिया पे आपने ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वैसे 6 एरियाज होते हैं पर अभी मैं क्या क्या बताऊं ना इतने कम समय में, पर Right, कम sir. से कम आरएम के कुछ प्रोग्राम्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कुछ प्रोग्राम जिसमें सॉफ्टवेयर हैंडलिंग भी आता है, ये आपका पीएचडी को एनरोल करने से पहले हो जाना चाहिए। और ये यूज करके, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही ग्रुप फॉर्म करके आपके कम से कम 4 आर्टिकल्स तैयार हो जाने चाहिए, पब्लिश होने जाने चाहिए एटलीस्ट बी या सी कैटेगरी के जर्नल में। और उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट गोइंग फॉर पीएचडी। मैं रिसेंटली Okay, एक sir. वर्कशॉप अटेंड कर रहा था एज ए पार्टिसिपेंट, और दिल्ली गुड़गांव की तरफ का, एनसीआर की तरफ की फैकल्टीज थी, और वो उनका एक अनुभव बता रहे थे कि रिसेंटली उनके पास एक रिसर्च स्कॉलर आया था और उसने इच्छा जताई कि सर मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ। सर बोले यस यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा, एक काम करिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ वो करके लेके आ जाइए, देन यू आर वेलकम, कि मैं आपको एनरोल कर लूंगा। उन्होंने एक असाइनमेंट ये दिया कि आपको एक एसएलआर पेपर डेवलप करना है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। आपके दिमाग में जो भी टॉपिक चल रहा है उसको लेके सिर्फ एक एसएलआर पेपर आप पब्लिश करके लेके आइए बी या सी कैटेगरी जर्नल में। उसके बाद डेफिनेटली मैं आपसे और कॉम्प्रहेंसिवली बात करूंगा। यानी में अभी बात ये Yes, होती है sir. कि बहुत से लोगों को तो आज ही पता चल रहा होगा कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करता है। Right. बराबर है। खास करके विदर्भ रीजन में अभी भी इसको लेके इतना अवेयरनेस नहीं। मैं तो काम कर रहा हूँ रियलिटी में, कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसको ले रहा हूँ, पर ये बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को अभी भी नहीं। अभी रिसेंटली मुझे एक नाम नहीं लेना चाहिए सिटी का, पर अपनी बिल्कुल नेबरिंग यूनिवर्सिटी है, वहां से एक बंदे का मुझे फोन आया और वो कह रहा था कि सर मैं अभी एनरोल करना चाह रहा था और हमारी गाइड भी आइडेंटिफाई मैंने कर ली थी, और मैं मैडम के पास गया तो मैडम ने मुझे बोला कि कम से कम एक एसएलआर पेपर आपको पब्लिश करना है, फिर आइए, फिर मैं आपको एलैबोरेटली बात करूँ, उसके बाद सोचेंगे कि आपको मेरे अंडर में मैं लूंगी या नहीं लूंगी। तो वो बंदे ने ये वर्ड ही पहली बार सुना और उसने मुझे फोन किया क्योंकि उसने रिसेंटली मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी किया था। तो उसने मुझे पूछा सर ये क्या बला है। तो बोला यार ये लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो आप पब्लिश कर सकते हैं बी सी ए कैटेगरी में भी अगर क्वालिटी अच्छी है तो, पर फर्स्ट टाइमर्स के लिए बी या सी में वो चला जाता है, ये नो डाउट अबाउट है। तो बात वही आती है कि सर ये करना कैसे है, अभी ये 2 मिनट में तो बता नहीं सकते कि ये एसएलआर करते कैसे हैं, इससे कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस, पूरे 1 हफ्ते का मेरा प्रोग्राम होता है। तो पर ये चीजें आपको अर्ली स्टेजेस में अगर मालूम है तो पीएचडी मीनिंगफुल हो जाती है। अभी बात करते हैं नेहा मैम का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि 1 या 2 सेक्शंस पे ही आप एलआर करके प्रेजेंट कर सकते हो क्या, दिस वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ नेहा मैम। अभी आपके टॉपिक में इसके रूट से, आपका टॉपिक अगर कॉम्प्रहेंसिव है, कॉम्प्रहेंसिव यानी क्या, आपकी जो थीम अंडर कंसिडरेशन है जिसको मेजर थीम कहते हैं, कि आपके टाइटल में एक मेजर थीम लेके चलते हो कि ये थीम है मेरी। थीम यानी क्या, अगर आपको कोई पूछता है कि आप पीएचडी कर रहे हैं यानी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो आप उसको एक लाइन में जो बताएंगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ Right, या sir. कर रही हूँ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेजर थीम। अभी ये मेजर थीम के आप सब थीम बना सकते हो क्या, ये सबसे पहला क्वेश्चन। सब थीम यानी क्या, इसके सेक्शंस, और ये आप कितने कर पा रहे हो। यानी में ये कॉम्प्रहेंसिव sir. थीम के आप अगर 5 टुकड़े कर पा रहे हो, सब थीम नंबर 1, सब थीम नंबर 2, सब थीम नंबर 3, 4 एंड 5, तो आपको हर एक सेक्शन पे सेपरेट एलआर करना है।
Okay, sir. और आपका जो पीएचडी का चैप्टर नंबर 2 है उस पे लिखते वक्त सेक्शन नंबर 1 का एलआर यहाँ पे आएगा सेक्शन 1 में। यहाँ पे आपने Okay. सपोज 35 साइटेशन दिए तो सेक्शन नंबर 1 में ये साइटेशंस आएंगे और उसकी समरी। सेक्शन 2 में इसके साइटेशंस आपके इफ सपोज ये आ गए 29। सेक्शन 3 में इसके साइटेशंस इफ सपोज ये 54 आ रहे हैं, इसके साइटेशंस और इवेंचुअली एक ब्रॉड कंक्लूजन ऑफ योर एलआर। Okay, sir. दिस इज हाउ वी राइट लिटरेचर रिव्यू चैप्टर। अभी बात करते हैं आपके काम की, जो शायद अभी मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरनेट पे या किसी किताब में नहीं मिलेगी। आप सब लोग नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी ने एक पीडीएफ फाइल आपको दी है जो अभी भी अवेलेबल है पीएचडी सेल में। वो पीडीएफ फाइल होती है नोटिफिकेशंस की। नोटिफिकेशन मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना रिसर्च करने के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो क्या रहेगी, ओके, जिसमें रूल दिए होंगे। उसमें एक एक क्लॉज ऐसा है कि यू आर सपोज टू राइट एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर, ओके, ऑन द टॉपिक ऑफ योर पीएचडी। आपके पीएचडी sir. के टॉपिक पे आपको कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है और वो पब्लिश करना है पीयर रिव्यू जर्नल में, ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है। पर सेफर साइड नोटिफिकेशन में एक का उल्लेख है, पर हम करते वक्त जनरली या आपके गाइड भी बोलते हैं कि कम से कम 2 या 3 करके रख दो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज का, ये नोटिफिकेशन अपडेट होते रहते हैं। हो सकता है कि जिस वक्त आपके पीएचडी के सबमिशन का समय आए उस वक्त ये शायद एक का क्राइटेरिया 2 या 3 हो गया होगा। और Right, कभी sir. भी आप जब ज्यादा करके रखते हो ना, नो वन विल माइंड। पर कल आपकी सबमिशन की लास्ट डेट है, आज वहां पे आप खड़े हैं और वो अगर बंदा आपको बता रहा है कि रूल तो चेंज हो गया, अभी आपको 2 करने हैं, तो आप एक दिन में दूसरा पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो। इसलिए सेफर Yes, sir. साइड हर कोई गाइड है या कोई भी हमारी जैसी फैकल्टी, हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो बोला उससे ज्यादा करके रख दो, और ज्यादा Yes, करने sir. में कोई तकलीफ नहीं है। अभी ये हम लोगों को पब्लिश करना है पीयर रिव्यू जर्नल में। अभी बात होती है कि पीएचडी के टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर लिखना है यानी क्या, तो बात वही होती है कि आपकी मेजर थीम से आप कितनी सब थीम बना रहे हो। हर सब थीम पे, सब थीम नंबर 1 इस पे एक पेपर जाएगा आपका, ओके। ये दूसरा, ये तीसरा मीन्स यू कैन राइट मल्टीपल पेपर्स फ्रॉम योर वन पीएचडी टॉपिक, Right, sir. and this acumen you need to develop कि how to divide your major theme into appropriate sub themes by clubbing some objective। जैसे थीम, सब थीम नंबर 1, सब थीम नंबर 1 ये आपको आइडेंटिफाई करनी है, और इसको लेके आपने जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 अप टू, इफ सपोज मेरे यहाँ एक अपने यहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी में एक कन्वेंशन मैंने ये देखा है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जनरली रेंजेस बिटवीन 8 to 15, और ये एक के नीचे आप एक लिखते हो ऐसे, और ये रैंडम ऑर्डर में जनरली लिखे जाते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस लिखते वक्त हमको ये मालूम नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव लिखने का और प्रेजेंट करने के भी तरीके हैं। साइंटिफिक राइटिंग नाम से एक डिसिप्लिन है जिसमें ये सब रूल्स दिए गए हैं। पार्ट अपार्ट ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे हैं, इफ सपोज 13 ऑब्जेक्टिव्स यू हैव गॉट, नाउ यू जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि सब थीम नंबर 1 जो आपकी है उसमें से ये 13 में से कौन से 2 या 3 है। Now you club Yes, together sir. these 3 objectives and you develop a title for this sub-theme and you write a paper on this and publish it in a peer review journal. So Okay, this sir. is how we are supposed to proceed. Okay? Thank you, sir. So You made it इसको very clear. वेलकम मैम। तो अभी जो मैंने गूगल स्कॉलर या फिर अभी जो एलआर को लेके, ये तो इंसेंटिव है एक्चुअली, इसको लेके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। सर 5 मिनिट्सचा ब्रेक द्यायचा का, ठीक है मैडम। इफ पार्टिसिपेंट्सला हवं असेल तर। हो बिल्कुल। फ्रेंड्स ब्रेक Yes, sir. चाहिए 5 मिनिट का। मॅडम कोणी एक क्वेश्चन विचारता तेवढा घेऊन घेऊ मग हो break हो घेऊ. हो सर चालेल। सर अनुप ठाकरे दिस आहे. Yes, sir. सर मला जो प्रश्न होता, तुम्ही आता म्हणाले की तुमच्या मेन थीमला तुम्ही सब थीम मध्ये डिवाइड करा
तर आपण ज्यावेळेस कंबाईन एक ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन करतो आहे तर ते ऑब्जेक्टिव्ह पण आपल्याला सॉर्ट आउट करावं लागतील अकॉर्डिंग टू द सब थीम आणि त्यांना ऑर्गनाइज करावं लागतील असं तुमचं म्हणणं आहे. ऑब्वियसली अभी जो होंगे ना आपके पास वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे. येस सर एक्झॅक्टली. You need to identify any 2 or 3 such objectives which are dealing with same issue. येस सर. And if such kind of objectives are not there, there is very possibility that कि 2 या 3 ऑब्जेक्टिव एक ही थीम के नहीं निकलेंगे, यानी क्या आपने सिनॉप्सिस बनाते वक्त गलती की है. इट इज सो सिंपल. सिनॉप्सिस लिखना वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है ही. व्हाट इज सिनॉप्सिस यार? वन लाइन डेफिनेशन ऑफ सिनॉप्सिस, इट्स अ रिटन कमिटमेंट ऑफ व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू इन नेक्स्ट 5 years. एंड हाउ कैन यू राइट इन जस्ट 5 days व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 5 years? वहां पे गलती होती है. असली डैमेज वहां पे हो रहा है. यानी मुझे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर सिनॉप्सिस एक बार आरआरसी से फाइनल होने के बाद हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं क्या? और शायद आपके मन का भी सवाल होगा, ये फॉर श्योर होगा. और ये होता क्यों है? क्योंकि सिनॉप्सिस लिखते वक्त हमारी आइडियाज क्लियर नहीं होती है. जब एक्चुअल काम करते हैं तब पता चलता है कि यार बहुत सारी चीजें सिनॉप्सिस में ऐसे लिखने में आ गई कि जिसके ऊपर हो ही नहीं सकता है कुछ, और बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं लिखने में आई है जिसके ऊपर एक्चुअली कुछ काम कर सकते हैं. तो इसलिए पीएटी प्लान करने से पहले आपने एंट्री लेवल पे कम से कम 2 साल आपके दिमाग में जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर काम करना कंपलसरी है. काम करना यानी क्या? रिसर्च पेपर तो लिखो यार पहले. मैं बात ये कर रहा हूं कि आपको अगर एक पार्टी देनी है 200 गेस्ट को, तो उस दिन सवेरे आप रोटी कैसे बेलते हैं ये नहीं सीख सकते हो बॉस. आप घर वालों के 4 लोगों के लिए तो खाना पका के देखो एक बार, फिर 200 लोगों को बुलाओ ना. वही बात हो रही है कि हमने घर के 4 लोगों के लिए खाना कभी नहीं बनाया है, पर गेस्ट को बोल रहे कि आज मैं खाना बना रहा हूँ और मेरी तरफ से दावत है. वो पीएटी वाली बात हो गई बॉस. तो छोटे लेवल पे पहले जाओ, जो गलतियां करनी है पेपर में करो, नो वन विल माइंड. पर पीएचडी वंस इन अ लाइफ टाइम होता है यार. रिसर्च पेपर आप 40 लिख सकते हो पूरी जिंदगी में, पर पीएचडी थेसिस शायद एक ही बार. तो गलतियां करनी है पेपर में करो, थेसिस में मत करो. So Anup sir, येस सर. व्हॉट इज इट? so we will have a 5-minute break now. Ashish sir, Samir Padole here. Yes sir. Yes, Ashish sir, just now you told. So, can some minor changes be done, like what we write in our synopsis and what we plan accordingly? So, ठीक है. ये सेकंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझे कि सर कर सकते हैं क्या चेंजेस? देखिए, चेंज ना 2 तरीके का परस्यू किया जा सकता है. चेंज हम क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान में लीजिए. चेंज का मतलब है, एक सेंस आता है कि चेंज होता है जो मैनिपुलेशन कहलाते हैं. चेंज होता है जिसको इंप्रूवमेंट भी कहा जाता है. चेंज 2 सेंस में आता है. एक मैनिपुलेशन यानी आपके काम आसान करने के लिए अगर आप सिनॉप्सिस में चेंज करना चाहते हैं उसको मैनिपुलेशन कहेंगे. पर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च. अगर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि इफ यू आर विशिंग टू resort to some sort of changes for the further improvement of the quality of your research study, I don't think anyone will mind. If you justify कि आपने जो चेंज किया है, अगले ने अगर क्रॉस क्वेश्चन किया कि यार सिनॉप्सिस में ये लिखा था, ये क्यों किया, अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी. बिकॉज at a time of writing my synopsis, I was not pretty clear regarding the ground realities. When I started working on my research study, I realized that this thing can be better explored this way. And after taking into consideration or after realizing the ground realities, I have made these changes just to improve the quality of my research study. And therefore, I just I have incorporated these changes. And if you could convince your supervisor and your evaluators, then I think you may resort to changes. But this is, to a larger extent, will depend on how you are going to present yourself, how you are going to justify yourself. okay, sir. देखिए, हमारे सिस्टम में जितने भी पीएचडी से रिलेटेड लोग हैं, आपका सुपरवाइजर हो, आपका
आपके रिसर्च सेंटर के जो अथॉरिटीज है, कोऑर्डिनेटर हो या फिर वहाँ के आपके जो मेंटर्स होंगे वो हो, या फिर आपका प्री सबमिशन वाइवा लेने वाली टीम हो इवेल्युएटर की, या फिर आपका फाइनल वाइवा लेने वाली टीम हो, या फिर आरआरसी के मेंबर्स हो, ये सबके मन में एक ही बात है कि यार इन सबके प्रोजेक्ट की रिसर्च की क्वालिटी कैसे एनहांस कर सके। यानी में वो भी चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी ही जनरेट हो, और अगर आप चेंज कर रहे हो और उनके ऑब्जेक्टिव्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हो कि सर आई हैव रिसोर्टेड टू चेंज इट जस्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। Okay. Thank you. Thank you. और ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ योर सुपरवाइजर, आप सुपरवाइजर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे बिल्कुल बात करिए कि आई हैव रियलाइज्ड इट दैट कि दिस थिंग कैन बी फर्दर एक्सप्लोर्ड इन दिस वे, एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू चेंज कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सो काइंडली अलाउ मी। तो शायद सुपरवाइजर भी माइंड नहीं करेंगे। Okay. So any other questions, or shall we take a 5-minute break? So I think we shall take a 5-minute break. We'll again assemble after 5 minutes. ओके सर.